let me tell you about today's spaces. Uh, First of all, I think language will be Hindi and English mixed. It will go on for pretty long time, and we'll answer all the questions that you might have. Okay. We'll start at 9:05, and for the next 4 minutes, let me tell you how I met or how I came to know about Rishi Bhai. I was probably 1 year back. I was searching for some kind of execution tool or some kind of automation of my system or my strategy. And I was talking to a logical trader, and I was talking to Soham. I did one spaces with Soham, and there he mentioned about Rishi Bhai. I think he had used services of Rishi Bhai for some time, and he recommended. So I called up Rishi, and we discussed about automation of a somewhat different strategy, and that is still pending. But in the meantime, I browsed through the website that he runs, my Algo Mate, and there I saw a lot of ready-made off-the-shelf tools or execution engines, you can say, which were there. One thing which I liked about the website or the way it has he has structured it is that you don't need any kind of coding skills. I have zero coding skills to automate your strategy or to automate your platform or whatever you might call it. Last computer program which I wrote was in C++, and that was like exact 21 years back. So after that, I have never written any program. I looked at couple of Python codes and the kind of errors it throws, and I almost shit in my pants. So there are things that this is not your cup of tea, and probably coding will never be my cup of tea. Inshallah, one day I'll be rich enough to employ a lot of coders. That's one of the dreams. So I have to fill for another 3 minutes. So that's how I came to know about Rishi and his website and the kind of services he gives. And then I started with paper trading first for first 15-20 days. I think that was in November 2021, and I was really impressed with the execution speed, and there was almost zero lag. And before that, I had also used another custom made program, so I could understand that there are so many corner cases, and my friends keep talking about the issues that they face and so on. So I was very apprehensive using full on algo, using API or firing orders from a third party platform. It's been uh, more than 8-9 months, and it's going good. So, without much delay, now I'll welcome Rishi. And first, the format of the show will be I will be trying to get to. I have hardly spoken to Rishi, like maybe 2-3 times, 4 times, and that too about software upgrade. So I don't know him personally at all, and so it will be good opportunity for me as well to come to know him and to ask so many questions. And at the end, I'll keep the session open for audience questions if you have any questions. So, welcome, Rishi. And so, Yeah, thank you so much, Anand bhai, for inviting me. I hope I'm audible. yeah, you are very audible. Actually, it's like very loud. Great. So, yeah. Oh, is it? Okay. Yeah. Great, great. So, first of all, I wanted to ask you, like, take us through your journey in terms of how you got exposed to capital markets, share market, and how you got exposed to softwares or algo. What is your day job? Take us through that. Yeah, actually, all the credits goes to my father. He had taken some terminal where there were different indicators and charting platform. So I got curious about indicators. It was like when I was in 11th, 12th. So I started exploring what is RSI, what is MACD, and everything, and that is how I got into stock market. So at the early age, I started trading, and after college, like Zerodha started the API for retail traders. So that is how I got into this field. Like it was totally unplanned, but somehow I got into this. So I took up some small projects
in Python for Kite Connect API, and that is how this whole journey started. So I when was you say actually, yeah. yeah, yeah, go on. So I was one of the person who started algo trading in India. Like the first 2 to 3%, I was one of them who were developing this algo trading softwares. Yes, Anand bhai. Yeah. So you're saying your father was using different indicators, and then you got exposed in class 11th or 12th to stock market. Which year it was? Like, if you can take us through the timeline, how many years back? I think it was 2010-11, just after the 2008 crash. I was not like at that time. I didn't know that we can buy shares and sell shares, but I just started with RSI. Okay, Then I okay. understood then I started reading about stock market. So, and education-wise, are you like a computer engineer, or what is your background? Electronics engineer. Okay, and after that, you did Yeah. some job as well, or you straight away came to trading? Um, so like the trading I was doing from 12th, but I took a small internship after college, and then I wanted to start some business. So for 1.5 year, I was just trying different things, and then I came to know about Zerodha API. So after that, I'm in algo trading. It was around 2016. Until 2016, you were also a manual trader. Yes, yes, yes. So, and were you profitable, or what kind of trading you used to do initially? No, initial 8 to 10 years were like loss making only. I was Eight trading to with ten my years. father. Yeah, Okay, okay, yeah. and I was like trying different things, and I was using my father's money as my capital. So mhm. so and initial 8 to 10 years were difficult. After that, I slowly became like no profit, no loss, and now in profit. so, what is the change that you encountered that you did? Which are the mistakes you started avoiding and things like that? So basically, like I used to use indicators a lot, but somehow they are lagging indicators, and uh, so I started exploring the price action field, and like I came to know about a guy, Rajiv Murarka. We accidentally met in a WhatsApp group, so I learned a lot, so many things from him, and now I'm completely trading based on price actions. So that helped me a lot in my trading. And this term API or a broker's API, how did you get you exposed to it initially? You said na you are one of the very earliest guys using Zero the API. Yeah, so actually, I'm an electronics engineer. So when I heard heard about the API, I did not know anything about the API when I first saw Zerodha API. So I took some help from my friends, like what is API and everything, and then I started. I took a very small project in freelancing, and I tried different things, and I somehow completed it. So that is how I used to know like how to use API and everything. Actually, I have never read any book about algo trading, or I never seen any videos about it, because at that time there was no content available anywhere. So I tried different things like थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग करके धीरे धीरे सीखते गए. और इस बीच में आपने जॉब भी किया लाइक नहीं, so basically job was like कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर मैंने इंटर्नशिप किया था. So उसके बाद I completely left for 1.5 year. I was not like I was trying different things. अलग अलग बिजनेस करने का ट्राई कर रहा था. गुजराती है तो यू नो बिजनेस करने का ज्यादा मन होता है. So 1.5 year was like I was trying different things, and then I came to know about API, Zerodha API. So after that I started learning Python. Actually उस टाइम पे तो मुझे Python भी नहीं आता था, because in electronics there is different types of programming. There is no Python or C sharp or any other language. So ओके learning like after Zerodha API, I started learning Python and using the API. And after that, everything is based on experience only. Like I, tried different architecture for the strategies, and finally made my own architecture.
ओके, और ये जो पहला प्रोजेक्ट लिया था आपने, ये भी करीब 7-8 साल पहले था? हाँ, फर्स्ट approximately प्रोजेक्ट that you 6 years, I completed. guess. 6 years, I guess. You remember what it was? I mean, if it is not confidential. No, actually, I also tweeted about the same before few days. It was simple, like open equal to high, open equal to low strategy. क्लाइंट को ऐसा एक स्कैनर बनाना था कि सिंपली ओपन इक्वल टू हाई एंड ओपन इक्वल टू लो जितने भी स्टॉक्स हो उसमें एंट्री के ऑर्डर्स फायर हो वैसा. Okay, okay. So it's And very simple stuff. Yeah. mhm. And I got like I got paid around 1300 or something for that job. And I still have that screenshot with me. I keep it on my laptop desktop. Mhm. And till now, how many projects you have completed? How many client orders you have completed in terms of custom-made algos? So personally, I have automated more than 1,000 strategies, like different types of strategies. And since Malgomet, it is even increased. Like the Malgomet, we founded like 1 and 8 years back. And in Malgomet, we Eight have years back. no 1 and 8 months. Sorry, So 1 year 18 and months. 8 months. Okay. Yeah, Okay. 18 months. Okay. Yeah. Okay. Okay. So after that, it has increased, and now I have a full team who are automating the strategies. Okay. And how did you have Harsh is your partner, ना? जो दूसरा आपका और Yes, correct, correct, and correct. how did you meet him? Harsh is my childhood friend. We live in the same street, अच्छा. and Harsh's father and my father are friends. So So your business partner is your childhood friend. Okay. Okay. yes, correct, correct. And And after वो उसका Malgomet, क्या background everything है? is kind of. So he was a SAP consultant before Malgomet. Okay. Yeah, so his expertise is in desktop-based software. So we got together and we thought of doing something together. So after that, like before Malgomet, I was working on Zerodha API only. I was not able to add any other broker, but now we have added together. We have added around 12 brokers. Wow. So Okay. everything scaled up after Malgomet. Okay. So my Algo Mate is the company you have formed, and you are the only partner with Harsh, or there are more partners? Yeah, Harsh and I both are partners. Only partners. Okay. And what kind of challenges you have faced over the years? Like, which is the worst day you faced in your journey as an entrepreneur for making algos for other people? अल्गोस बनाने में सबसे बड़ा जो इश्यू है ना वो है मल्टीपल ऑर्डर्स फायर होने का कि लेट्स आपका कोई भी स्ट्रेटेजी हो कोई सिग्नल जनरेट होता है तो मल्टीपल फायर ऑर्डर्स फायर होते हैं ना वो सबसे बुरा इश्यू अल्गो ट्रेडिंग डेवलपर के लिए होता है और वो मिस्टेक मैंने एक बार की थी एंड क्लाइंट वाज सो जेनरस कि मैंने उसको करेक्ट भी कर दिया और उन्होंने कुछ ज्यादा बोला भी नहीं बट इट वाज इन वेरी अर्ली स्टेज so after that that is the main thing that we take care about there should be no multiple orders. हाउ डू यू अवॉइड दैट? जब मतलब एक ही ऑर्डर कई बार मतलब एक्सचेंज से कंफर्मेशन नहीं आता होगा और फिर वो बार बार आप हिट करते रहते होगे, राइट? दैट इज अ मिस्टेक. हाँ यस मोस्टली वही होता है और ये एक्चुअली ऐसा मिस्टेक है ना बहुत ही मतलब व्हेन यू फाइंड आउट लाइक व्हेन यू फिगर आउट दैट इश्यू इट इज वेरी स्मॉल थिंग लाइक आपको जस्ट एक फ्लैग या दो फ्लैग एनेबल डिसेबल करना भूल गए होते हैं और ये मिस्टेक हो जाता है सो दैट इज द लाइक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड अभी तो मेरे टीम को भी मैं वही सबसे पहले बोलता हूँ कि आप सबसे पहले ये ध्यान रखो कोई भी स्ट्रेटेजी ऑटोमेट करो तो मल्टीपल ऑर्डर्स फायर नहीं होना चाहिए अगर कोई ऑर्डर मिस हो जाता है दैट इज ओके बट मल्टीपल ऑर्डर्स आर नॉट ओके सो दैट इज द वेरी फर्स्ट चैलेंज फॉर न्यू कमर्स हु आर ऑटोमेटिंग द स्ट्रेटेजीज अदर देन दैट लाइक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है कि सबसे कम लेग में एग्जीक्यूट कैसे करें तो वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है दैट आई स्टिल डू. राइट, राइट. और मैं जैसे जब आपको पहली बार जब मैं इंटरेक्ट किया तो आपके ट्विटर पे 3,000 शायद फॉलोअर्स थे और आपको बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा भी कि हर्ष ऋषि को जानते हो क्या? हाँ, तो बहुत correct, कम लोग correct. जानते थे. तो ये जो न्यू एज क्रिएटर इकोनॉमी है और ये सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, इसमें मुझे लगता है कि कोई भी जैसे ये तो खैर हमेशा से ही था कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई भी सर्विस दे रहे हो तो उसका सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग उसको खरीदें, उसका पैसा पे करें, दैट उसी से
पूरा घर बार चलना है, सबकी सैलरी आनी है और उसी से आप एक्सपैंड करोगे। करेक्ट। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी देखने में लगी कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है एंड हार्डली एनीबडी नोज अबाउट इट, और आपने ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं करी है, ज्यादा आप ट्विटर पे भी हाई प्रोफाइल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको लगा कि ये एक आपका उस मतलब इम्प्रूवमेंट एरिया है। सी फ्रेंकली स्पीकिंग ना, मतलब थोड़ा बहुत चलो ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छा काम करते हैं, बट वी डोंट हैव दैट मच फॉलोअर्स, बट एक्चुअली वो चीज का मुझे बेनिफिट बहुत मिला है। फॉर एग्जांपल लाइक बिजनेस में मेरा थिंकिंग कैसा था कि पहले मैं सर्विस बेस्ड काम करूंगा, कि आपका कस्टम स्ट्रेटेजी ऑटोमेशन है वो मेन चीज है। तो सर्विस बेस से मैंने स्टार्ट किया, अभी धीरे धीरे प्रोडक्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो मतलब इसका एडवांटेज मुझे ये मिला है कि हम लोग, मेरे कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स वर लेस, तो ज्यादातर टाइम हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करने में जाता था। कि सो लाइक अभी ऐसा टाइम आ गया कि हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट है, नाउ वी कैन फोकस ऑन द सेल्स पार्ट। बट अगर पहले से ही कस्टमर ओरिएंटेड अगर फोकस किया होता तो इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट शायद बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक इशू रहता है कि फॉर एग्जांपल अभी लाइक इफ आई एम स्पेंडिंग 90% ऑफ द टाइम इन डेवलपमेंट और ज्यादा कस्टमर्स आ गए, तो आई विल बी स्पेंडिंग 50% 60% टाइम इन डेवलपमेंट। सो आई गेस उसका बेनिफिट मिला है कि उसकी वजह से हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप कर पाए। ओके। और मतलब आपके काफी स्ट्रेटेजी जो है उनका ओरिजिन जो है वो स्टॉक मॉक पे रहता है, ऐसा मेरे को लगता है। यस, लाइक स्टॉकमॉक बेस्ड स्ट्रेटेजीज के लिए हमने एक जेनरिक टूल बनाया है कि जो भी स्ट्रेटेजी स्टॉकमॉक पे बैकटेस्ट होती है वो हमारे टूल पे ऑटोमेट होती है। सो इनिशियली तो कैसा था कि आई गोट फ्यू रिक्वायरमेंट्स फॉर टाइम बेस्ड ट्रेडर्स ओनली, लाइक एट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर अबाउट स्टॉकमॉक, but I got similar requirements from 4 to 5 people, so I started searching about it, and then I got to know about StockMock. So I thought I should build a product for this. So that is how the like idea for StockMock based automation tool came. So initially तो मैं भी इतना सोचा नहीं था कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बट लाइक अभी इतने टाइम के बाद काफी कस्टमर्स है इस प्रोडक्ट के लिए, एंड पीपल आर रियली हैप्पी विद द एग्जीक्यूशन पार्ट। बट लेकिन ऐसा तो जो मतलब ट्विटर स्पेस में रहता है ना कि स्टॉक मॉक की स्ट्रेटजीज पता नहीं वर्क करती भी है कि नहीं। नहीं, आपका एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट जो आपने ऑटोमेट किया है, या मतलब ऑटोमेट किया, एक टूल क्रिएट किया है जो 920 वाला है, स्ट्रैडल्स की एंट्री एंड ऑल, वो बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि ये तो शायद वर्क नहीं करता होगा, या उन्होंने काफी इस पे पीएचडी करी हुई है कि क्यों नहीं वर्क करता है, राइट? तो आपके एक्सपीरियंस में चूंकि आप देख रहे हो और आप काफी कस्टमर्स जो ऐसा बोल रहे हो कि डिमांड में रहता है प्रोडक्ट, तो इज इट लाइक ये सीजनल कस्टमर्स होते हैं कि 1-2 महीने ट्राई करते फिर चले जाते हैं, या यू सी सम स्टिकीनेस इन दी स्ट्रेटेजीज? स्टॉकमॉक स्ट्रेटेजीज में लाइक बाय फार सो फार लाइक जो हमारे इनिशियल फेज के फॉर एग्जांपल 10 to 15 कस्टमर्स होंगे कि जो 1 साल से यूज कर रहे हैं, तो कोई भी कस्टमर्स बीच में से ड्रॉप नहीं हो रहे। अभी ड्रॉप होने का रीजन क्या हो सकता है? एक तो या तो उनका स्ट्रेटेजीज चल नहीं रहा है, तो स्ट्रेटेजीज लोग इम्प्रोवाइज करते जाते हैं ओवर टाइम। लाइक बीच में अप्रैल में महीना का पीरियड था जो सभी टाइम बेस्ड ट्रेडर्स के लिए, इस तरह के ट्रेडर्स के लिए थोड़ा बुरा गया था, बट ओवर टाइम पीपल आर लाइक स्टिकिंग इट टू इट। एंड लाइक काफी लोग मुझे पर्सनली सी, जनरली हम लोग कभी ट्रेडर्स को पूछते नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं पूछते कि आपका स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, आपको, हम लोग सिर्फ ऐसा ही फीडबैक लेते हैं कि सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है, आपको कोई एग्जीक्यूशन में इशू नहीं हो रहा है। बट फिर भी लोग सामने से कई बार बताते हैं कि ये मंथ इनका बहुत अच्छा गया, दे गॉट रिटर्न्स एंड बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर दे कुड मतलब ऑटोमेट करके उनका बहुत टाइम बच जाता है। तो इस तरह से फीडबैक काफी मिलते हैं कि लोग यूज तो करते हैं, कुछ लोग इवन फंड मैनेज करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो मेन चीज ये है कि अभी आप सिंपली अगर 920 स्ट्रेडल करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, यू हैव टू डू सम योर ओन कस्टमाइजेशंस ऑन इट। तो लोग अलग अलग वेरिएशन ट्राई करते हैं एंड दैट वर्क्स फॉर देम। और इसके अलावा और कौन सी दूसरी स्ट्रेटजीज हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आपके पास आती है कि इसको ऑटोमेट करके दे दो, या सबका अलग अलग कस्टम मेड रहता है? बेसिकली सबका अलग अलग कस्टम मेड होता है। नाउअडेज ज्यादातर ऑप्शंस का ही आता है। जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो इक्विटी पे ज्यादा आता था कि लोग इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, बट नाउअडेज इट इज लाइक 90% अबाउट ऑप्शंस ओनली।
और ऑप्शंस में भी कैसा है, लाइक सम पीपल यूज कंबाइन स्ट्रेडल, कंबाइन स्ट्रेडल वीवेप, कंबाइन ईएमए। तो मोस्टली स्ट्रेडल स्ट्रिंगल्स के रिलेटेड आता है, या फिर तो एडजस्टमेंट लाइक। ये जो मैंने ये सुना नहीं, ये कंबाइंड स्टैडल वीवेप वाला क्या है? व्हाट इज इट? व्हाट इज द स्ट्रेटजी? सो बेसिकली आप अगर सिर्फ एक ऑप्शन के चार्ट पे अगर वीवेप प्लॉट करोगे, तो वो एक ऑप्शन का प्राइस पे, आपने प्राइस चार्ट पे वीवेप प्लॉट किया। बट आप स्ट्रेडल का कंबाइन चार्ट बना के, मतलब फॉर एग्जांपल कि सी का प्राइस 100 रुपीज का है, पी का 200 का है, तो उसका सम होता है, तो वैसे कंबाइन कैंडलस्टिक डेटा जनरेट होता है और उसके ऊपर वीवेप प्लॉट करते हैं। सो बेसिकली थीटा डीके कैप्चर करने के लिए ये जनरली लोग यूज करते हैं कि कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम जब ओवरऑल डीके कर रहा है, तो इट विल बी बिलो द वीवेप। ओके, तो बेसिकली दोनों का कंबाइन देखने का, और अगर उसका कंबाइंड प्रीमियम अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा फॉर द इंटायर हाँ, स्ट्रक्चर। yes, and then again they sell it after when it comes back below वीवेप। And people अच्छा। try different adjustment, like each and every person comes up with a different logic. So हम्म। कोई उसके साथ सुपर ट्रेंड अप्लाई करेगा, कोई ईएमआई अप्लाई करेगा, कोई एडजस्टमेंट्स करेगा, many different things। तो ये इसका भी कोई आपका रेडीमेड प्रोडक्ट है, ये जो कंबाइंड स्टैडल का वीवेप का मिला के कोई रेडीमेड ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट है क्या? अभी तक तो नहीं है, बट वी आर लाइक करंटली डेवलपिंग वन प्रोडक्ट फॉर स्ट्रेडल ट्रायंगल विथ एडजस्टमेंट्स। सो उसमें अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसा यूज करते हैं कि स्पॉट प्राइस के बेस पे एडजस्टमेंट, रोलिंग स्ट्रेडल या रोलिंग ट्रायंगल बोलते हैं, कि फॉर एग्जांपल निफ्टी पहले कोई पर्टिकुलर टाइम पे स्ट्रेडल शॉर्ट करते हैं, ऋषि और ऋषि अगर भाई, अपना इंडेक्स में। ज्यादातर ऑडियंस जो है ना वो बहुत बेसिक लेवल का है, तो अपने को एकदम धीरे धीरे जाना है ना? ओके। सॉफ्टवेयर में भी बेसिक लेवल और ट्रेडिंग में भी बेसिक लेवल। हाँ, तो क्या बोला आपने, जो रोलिंग स्ट्रैडल, तो वो बताइए, समझाइए पूरा फिर से। रोलिंग स्ट्रेडल मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आप 9:30 को एक एट द मनी स्ट्रेडल शॉर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल 17,000 स्पॉट प्राइस है, तो आपने 17,000 कॉल एंड पुट सेल किया। ठीक है, उसके बाद अगर इंडेक्स 100 पॉइंट्स मूव होता है, तो आप वो पूरा स्ट्रेडल शिफ्ट करके 17,100 करोगे। मतलब दोनों लेग आप काट दोगे और फिर से नेक्स्ट स्ट्रैडल बना लोगे करेक्ट, 17,100 का? करेक्ट। ओके। सो वी आर डेवलपिंग वन प्रोडक्ट कि जिसमें जो लोग एडजस्टमेंट बेस्ड ट्रेड करते हैं, तो वो अपने अलग अलग पैरामीटर सेट करे, कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा चाहेगा कि मुझे 17,100 पे कैंडल क्लोज होता है तो ये एडजस्टमेंट करना है, कोई चाहेगा कि मुझे एलटीपी टच करता है तो एडजस्टमेंट करना है, तो उस तरह के अलग अलग वेरिएशन हम ऐड कर रहे हैं उसमें। तो ये पाइपलाइन में है या ऑलरेडी किसी को डिलीवर कर चुके हैं? नहीं, ये ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे भी है। अच्छा। और सो मेनली अभी जो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन ऑप्शंस ओनली। सो ओके, तो ये ये रोलिंग एडजस्टमेंट में वाला जो और है, ये इसका क्या सा रिटर्न रहता है? मतलब बैक ऑफ दिन वाला आपने बैक टेस्ट तो नहीं किया होगा, बट जो मार्केट में लोगों से या बात करके समझ में आता है, रोलिंग रिटर्न वाला जो स्ट्रैटेजी जो भी आपने बताया। सी ऑनेस्टली मुझे भी आइडिया नहीं है कि रिटर्न्स का। एक्चुअली मैं कभी क्लाइंट्स को वैसे पूछता नहीं हूँ, बट जनरली लाइक लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, दे आर यूजिंग इन देयर ओन ट्रेडिंग। बट मैं कभी फिगर से ऐसा कुछ किसी को पूछता नहीं हूँ, बिकॉज मेरा जो बिजनेस है अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑटोमेट करने का है। सो इफ आई आस्क समबडी कि आपका रिटर्न क्या है, दे विल डाउट कि ये खुद के लिए यूज करेगा या ऐसा कुछ। सो वी डोंट जनरली आस्क दैट, बट ओवरऑल रिस्पॉन्स इज गुड बिकॉज वी आर गेटिंग सिमिलर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स। हाँ, सो मतलब इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि अगर आपका आपने स्ट्रैडल क्रिएट किया और एवरी 100 पॉइंट्स आप अगर बैंक निफ्टी में उसको, या निफ्टी में सॉरी, एडजस्ट करते जा रहे हो, तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। राइट। हाँ, यस। फिर उसमें करो। कुछ लोग ऐसा ऑप्शन प्राइजेस बेस्ड एडजस्टमेंट्स करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए पे कॉल बेचा और 100 रुपए पे पुट बेचा। अभी कोई एक लेग का प्रीमियम फॉर एग्जांपल डबल हो जाता है, कि सपोज कॉल 150 हो गया और पुट 75 है, तो उस टाइम पे लॉस मेकिंग लेग को कट करके जो 150 प्राइस का नया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करके उसको सेल करना है। सो हम्म। इस तरह के काफी वेरिएशंस होते हैं, तो उसमें मुझे जो भी आइडियाज आते हैं कि ये कर सकते हैं, तो मैं अपने एंड से ट्राई करता हूँ उसमें प्रोवाइड करने के। तो ये और वाला भी कोई आपने वेबसाइट पे डाला हुआ है क्या, ये 150 वाला और 75 वाला जो आपने बोला? वो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में हम लोग अपडेट करेंगे। तो इट इज फॉर द अंडर ऑडियंस, टेस्टिंग। मतलब ये बता दें कि ये एक स्ट्रैंगल है जिसमें 75 का एक लेग है और 75 का एक लेग है, और हाँ, अगर लेट्स से मार्केट यूनिडायरेक्शनल जाता है और 75 का भाव बढ़ के कॉल वाले का भाव 150 हो जाता है,
तो आप पुट वाले को ऊपर कर देते हो, बराबर? हाँ, पुट 150 का बाय जो कर, यस यस पुट में प्रॉफिट हुआ 150 का सेल उसको कर बुक देते। करके, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये काम सो बहुत लोग मैनुअली भी करते हैं, तो बेसिकली आप ऑटोमेट कर दोगे तो स्लिपेज कम हो जाएगा या इस तरह के हाँ जो। यस यस। सो बेसिकली हम लोग एक जेनरिक टूल बना रहे हैं कि इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि भाई आप ये पर्टिकुलर लॉजिक यूज करो, आप ये लॉजिक यूज करो। हम जो भी लॉजिक्स प्रोवाइड करते हैं उसमें आपका स्ट्रेटेजी फिट होता है तो आप यूज करो। सो इसमें लाइक धीरे धीरे और भी लॉजिक्स ऐड करते जाएंगे। कुछ क्लाइंट्स भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इस तरह का लॉजिक ऐड करना है, तो लाइक इफ दे वांट टू मेक इट पब्लिक तो हम हमारे जो जनरलाइज मतलब जो जेनरिक टूल है उसमें ऐड करते हैं। अगर उनको पब्लिक नहीं करना है, पर्सनली यूज करना है, तो उसके लिए हम कस्टम ऑटोमेशन कर देते हैं। ओके ओके, तो ये आपने जैसे एक बताया रोलिंग स्टैडल बताया, और दूसरा ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट जो स्ट्रैंगल में करते हैं। और कौन हाँ, कौन सी पॉपुलर टूल्स है जो जो लोग ज्यादा यूज करते हैं? रिसेंटली 5 AM स्ट्रेटेजी हमने ऐड किया है, पावर ऑफ स्टॉक्स का है। सो वो स्ट्रेटेजी भी बहुत पॉपुलर है एंड मेनी पीपल आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इट। सो 5 AM स्ट्रेटेजी भी हमने ऐड किया है, सुभाशीष पानी साहब का है। उसका उसमें डिटेल क्या है? बेसिकल सॉरी, उसका डिटेल क्या है? उसमें बेसिकली ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अभी मार्केट ओपनिंग के बाद अगर स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, तो आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 EMA प्लॉट करते हो और कैंडल का लो है वो 5 EMA को टच नहीं कर रहा है, ओके। फॉर एग्जांपल 9:30 टाइम का कैंडल जो है 5 मिनट का, वो 5 EMA को टच नहीं कर रहा है, और नेक्स्ट कैंडल में वो कैंडल का लो ब्रेक होता है ना, तो उसमें सेल करते हैं। बेसिकली काइंड ऑफ अ मीन रिवर्शन। मेन रिवर्सन टेक्निक, यस यस यस। ओके सो ओके। वो एक अभी ऑटोमेट कर रहे हैं, उसमें अभी इक्विटी हमने सेल साइड के लिए ऐड कर दिया है, उसमें बाय साइड भी बहुत जल्द आ जाएगा, और उसमें अलग अलग वर्जन्स भी होंगे। सो इसमें सारे पैरामीटर्स है वो यूजर खुद सेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो टाइम फ्रेम है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो वो सारी चीजें यूजर खुद से डिसाइड कर सकता है। ओके ओके, तो बेसिकली और ये सारे एक एक तरह का आप एक इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं जो इजी हो जाता है कि आपके जितनी भी यस यस लेग्स है वो एक यस साथ यस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, स्टॉप लॉस अपने आप लग जाएगा। यस यस यस। ओके। और अभी आप जैसे एक तो आप एंटरप्रेनर हो और साथ में ट्रेडर भी हो, तो अभी आपके पास तो यू हैव एक्सेस टू हंड्रेड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ स्ट्रेटजीज, तो आप खुद से कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, अगर आप बता सकते हो तो? सी ऑनेस्टली मैं मेरे खुद के लिए कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ। मेरे खुद के लिए मैं सिर्फ 5 AM स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ। ऑप्शंस में मैं अभी कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सी जो भी क्लाइंट स्ट्रेटेजी देते हैं ना, वो क्लाइंट्स के लिए हम ऑटोमेट करके उनको दे देते हैं, जो भी उनका पर्सनल स्ट्रेटेजी हो। तो वो मेरे खुद के लिए भी यूज नहीं होता है, ना ही हम उस पे मतलब कोई और बंदा अगर रिक्वेस्ट करता है तो भी हम शेयर नहीं करते हैं। कि जो वेबसाइट पे है वो सारे जेनरिक टूल है और वो पब्लिक डोमेन स्ट्रेटेजीज है। बट कोई भी क्लाइंट का सपोज आपका कोई पर्सनल स्ट्रेटेजी हम ऑटोमेट करते हैं, तो वो हम खुद भी यूज नहीं करेंगे, किसी और को भी नहीं देंगे। और मेरा मानना ये है कि लाइक ये ट्रेडिंग फील्ड ऐसा है कि इसमें आप किसी और के भरोसे पे पैसा नहीं बना सकते हो। कि कोई बंदा अगर स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है और आपने उस पर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया है, वो बंदा 1-2 साल का रिसर्च करके शायद आया होगा, तो जो 1-2 साल के पीरियड में उनका जितना नॉलेज गेन हुआ होगा वो आपके पास कुछ भी नहीं है, राइट। तो मैं पर्सनली वो यूज नहीं करता हूँ कुछ भी। मेरा खुद का जो भी रिसर्च है उसके बेस पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। सो रिसेंटली मैंने 5 AM स्ट्रेटेजी है वो मुझे अच्छा लगा, तो आई स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके ओके या ओके। और जैसे कि अभी जैसे मैं देखता हूँ, मैंने तो ज्यादा यूज नहीं किया है, और लास्ट 6 मंथ्स में या 9 मंथ्स में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि जो यही सेम काम करते हैं। पहले भी एक, मैं करेक्ट। किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर हुआ था जिसका आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो और आप उनके प्लेटफॉर्म पर जाके स्ट्रेटजी टेस्ट भी कर सकते हो, आप वहां से ऑर्डर भी फायर कर सकते हो। करेक्ट और फिर वो बहुत लोगों का उन्होंने वो भी किया था कि यू कैन बिकम फंड मैनेजर, आप अपनी स्ट्रेटजी डाल दो, जो सब्सक्राइब करेगा वो आपको पैसे देगा। बहुत बड़ा सा मॉडल करेक्ट था। मैंने करेक्ट बाद करेक्ट में ट्रैक करेक्ट नहीं किया कि क्या हुआ उसका। बट अभी तो देखता हूँ कि जो काम आप कर रहे हो इसमें भी बहुत से लोग आ गए हैं। तो करेक्ट हाउ डू करेक्ट। यू कीप योरसेल्फ अहेड ऑफ द कंपटीशन? सो
मेन फोकस वही है अभी हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कैसे बेटर चीजें प्रोवाइड कर सके। सो मेन चीज दो चीजें है, एक तो क्वालिटी ऑटोमेशन है कि अभी लाइक यू आप कोई भी स्ट्रेटेजी ऑटोमेट करना चाहोगे तो आपको कोई 5,000 में कर देगा, कोई उसका 10,000 चार्ज करेगा, कोई 30,000 चार्ज करेगा, कोई 50,000 भी चार्ज करेगा। सो मेन चीज जो मेन थिंग है वो दैट इज अबाउट क्वालिटी, कि ऑटोमेशन में कोई ग्लिच हमारे एंड से नहीं आना चाहिए। अगर ब्रोकर का एपीआई डाउन होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप जो ऑटोमेशन करके देते हो उसका टाइम टू टाइम अपडेट्स है या फिर उसका सपोर्ट है कि आफ्टर यूजर हैज स्टार्टेड यूजिंग उसके बाद आप उनको सपोर्ट ही ना दो, तो वो सब चीजें मेन प्रॉब्लम करती है। सो फार जो भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं ना, तो आप जो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे वो मैं समझ गया। मैं भी उस प्लेटफॉर्म से काफी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं और उनका मेन जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम सोल्व कर देते हैं। कि एक तो एग्जीक्यूशन का डिले होता है, लेग आता है या फिर गलत एग्जीक्यूशन होता है और सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये सारी चीजें हम लोग ट्राई करते हैं कि प्रोवाइड करने के लिए। मैं वैसे टेक्निकल बंदा तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जो चीजें क्यूरियोसिटी वाइज लगती है वो पूछना चाहता हूँ आपसे हाँ कि जी। जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे लैग इतना कम है और बाकी किसी भी जगह देखता हूँ तो थोड़ा ज्यादा लैग रहता है, तो इसको कैसे कम कैसे करते हो आप? हाउ डू यू मैनेज टू कीप इट सो लो? सी देयर आर टू थिंग्स नाउ। आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो इंडिविजुअल यूजर के लिए बना हुआ है, और इंडिविजुअल यूजर का प्लेटफॉर्म होता है ना उसमें जनरली लेग कम होता है और उसमें हमने और ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ होता है। अभी जो भी लोग बड़े कैपिटल से काम करते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिप्लॉइंग 4 to 5 करोड़ ऑफ कैपिटल, देन यू कैन नॉट ट्रस्ट सम। आपका स्ट्रेटेजी जो ऑटोमेट करके आप चला रहे हो वो किसी और के सर्वर पे चलेगा तो आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी वहां पे होगा। ये चीज है ना, मुझे इनिशियल पीरियड में काफी मतलब कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे कि जिनका बड़ा कैपिटल था, तो उन्होंने बताया था कि ये चीजें वो अपने सर्वर पे रन करना चाहते हैं। सो तभी से मेरा यही फोकस है कि अल्गो है वो आपके खुद के सर्वर पे चलना चाहिए, और इंडिविजुअल यूजर बेस है इसलिए उसमें वैसे भी लेग कम होता है। और उसमें हम और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस लाइक हमने काफी बार आर्किटेक्चर चेंज किया है। कि इनिशियली जो हम लोग एक फ्लो में स्ट्रेटेजी कोई भी डेवलप करते हैं तो वो आर्किटेक्चर पूरा हर बार हम हर कुछ टाइम पे चेंज करते रहे। सो अभी का जो आर्किटेक्चर इट इज लाइक वर्क ऑफ लाइक लास्ट 5 to 6 years, कि कैसे उसको पूरा ऑप्टिमाइज किया जाए। ना मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी एज ए यूजर, क्योंकि मैं तो बहुत ही इन मामलों में, आईटी के मामले में तो बहुत आलसी आदमी हूँ। तो मैंने तो शुरू में अपने लैपटॉप पे ही चलाया था, तो आपके जो पार्टनर है हर्ष भाई वो मुझे अक्सर बोलते थे कि आप सर्वर पे चलाओ। हाँ फिर यस। फाइनली उन्होंने ही मेरा अकाउंट AWS पे, अमेजन के सर्वर पे खुलवाया, और फिर मैंने देखा कि एकदम से स्पीड भी बढ़ गई। और दूसरी यस चीज जो यस। मुझे लगा, मतलब एज अ लेमैन, की जो मेरा डेटा है वो डायरेक्टली जीरोदा के सर्वर से कनेक्ट होता है, और करेक्ट शायद जो करेक्ट। बाकी के लोग आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो पहले उनकी वेबसाइट पे रूट होता होगा और फिर जाता होगा। दैट इज व्हाट माय यस अंडरस्टैंडिंग इज। तो यस शायद यस ये यस डिफरेंस रहता होगा। यस यस। और और तो अभी काफी इस अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स भी है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मतलब लाइक आई डोंट वांट टू दूसरों का बुरा बोल के मेरा फायदा मुझे नहीं करना है। काफी अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, बट मार्केट इतना बड़ा है कि सबको थोड़ा थोड़ा शेयर तो मिलने ही वाला है। सो तो सबका हाँ, फायदा है। मार्केट की बात करते हैं तो अभी जैसे लास्ट 2 इयर्स में अगर आपका जो कस्टमर काउंट है, जो यूनिक पेइंग कस्टमर है, वो उसका अगर कुछ आप डेटा बता सकते हो कितना कितना बढ़ा है, लाइक लास्ट 2 साल ओह में, माय गॉड। लास्ट लाइक बैक ऑफ द एनवलप, जस्ट फॉर, अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस चीज को बहुत ओवर एनालाइज करेगा, बट बैक ऑफ द एनवलप कि कैसे ये मार्केट बढ़ रहा है। अभी तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, बट कैसा है ना कि हमारा मार्केट शेयर पहले बहुत कम था, अभी हम धीरे धीरे करके लाइक आफ्टर अमेलगमेंट इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो like if I compare to 1 year back, then we have more than 200% growth in that ओके, और लास्ट 3 मंथ्स में? last 1 year में, मतलब हाँ, बिफोर लास्ट 1 ईयर में amalgamate टू and हंड्रेड after परसेंट amalgamate। टू Yes, हंड्रेड yes। परसेंट का ग्रोथ। और लास्ट 3 मंथ्स में कैसा ग्रोथ रहा? Last 3 month is around like 40 to 50% increase। मतलब So it, आप इसको बोलते हैं कि राजधानी की स्पीड से बढ़ रहे हो आगे। हाँ, एंड थैंक्स टू यू एंड मेनी अदर पीपल, लाइक काफी लोगों ने हमें हेल्प किया, आपने भी हमें बहुत हेल्प किया है। लाइक आपसे 4-5 बार बात हुआ है, बट सॉफ्टवेयर के साथ में आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया होता है। सो मेरे से क्या अभी सीखोगे? मैंने तो एक ही प्रोग्राम बनाया है पाइथन में, हेलो वर्ल्ड।
अरे ऐसा नहीं उसके है, मैं बाद आपका मैंने गिव अप स्पेसेस कर भी दिया। ज्वाइन करता हूँ, सो इट इज वन टू लाइक इट इज वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन। मैं आपके स्पेसेस भी कई बार ज्वाइन करता हूँ, सो आई गॉट टू नो अबाउट मेनी थिंग्स, नॉट अबाउट अल्गो ट्रेडिंग बट अबाउट अदर थिंग्स। सो हाँ, और अभी ये है कि हाँ बोलिए। अभी कैसा है कि अभी धीरे धीरे लोग हमें जानने लगे, तो ये जो ग्रोथ है इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। लाइक पहले मुझे बहुत कम लोग जानते थे, बट अभी धीरे धीरे लोग जानने मतलब लगे। मैं तो आपको गारंटी बता सकता हूँ कि अगर मेरे अंदर इतनी काबिलियत होती जितनी आपके अंदर है, तो मेरे 50,000 फॉलोअर्स होते मिनिमम। और मैं मतलब इट वुड हैव बीन हॉट केक टू सेल। जैसे एक छोटा सा हाँ। एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप बुरा मत मानेगा। जैसे अभी मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, तो इसका बैनर खाली पड़ा हुआ है, जो बैकग्राउंड में हाँ। ट्विटर स्पेस देता है ना, वो खाली पड़ा है। कोई भी आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो एक एल्गोमेट का अच्छा सा बैनर तो वहां बनता है। छोटी छोटी ये चीजें आपको सही, बता रहा हूँ। जैसे नहीं आपका सही जो बात है, सही बात है। प्रोफाइल पिक्चर है, वो भी अभी आप थोड़ा सा ये, ऑल्दो यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, बट और मेरे तो खैर प्रोफाइल पिक्चर है नहीं, बट यू कैन हैव अ जूम इन पिक्चर सो दैट पीपल विल रिमेंबर कि ये ऋषि हाँ भाई है। हाँ, व्हेन पीपल लुक इनटू योर आईज ना, दे टेंड टू रिमेंबर मोर। तो ये करेक्ट सारी करेक्ट चीजें करेक्ट। छोटी छोटी आप करोगे तो मतलब काफी ग्रोथ हो सकता है। ये और सही बात है। आपका ये मतलब आपने बीच में सोचा क्या, जैसे ऐसे ग्रोथ हो रहा है तो जनरली टाइम कम मिला होगा आपको, लेकिन आपने सोचा कि कहीं किसी के साथ कोलैबोरेट भी करेंगे? जैसे आपकी काफी स्ट्रैटेजीज जो है वो स्टॉक मॉक से आती है, तो ऐसा भी, जैसे आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड एज अ लेमैन, कि अगर मैं स्टॉक मॉक पे कोई स्ट्रैटेजी ट्राई करूं और उसको सेव कर लूं और मैं वहीं से क्लिक करूं, तो आपके यहाँ एक स्ट्रैटेजी बिल्डर बन के आ जाए, एक टूल, स्पेशली जो ऑफ द शेल्फ स्ट्रैटेजीज है, कोलैबोरेशन टाइप का। तो लाइक आई डिडंट गेट द आइडिया, लाइक आप एक बार कुड यू जैसे प्लीज मान लिया एक्सप्लेन मैंने अ लिटिल। 920, हाँ 920 स्टैडल मैंने स्टॉक मार्क पे टेस्ट किया, और उसका मैंने 3-4 साल का रिजल्ट निकाल लिया, राइट। और उसके ओके। बाद मैंने उसको सेव कर लिया, और मैं एक बटन क्लिक करूं एंड इट शुड कम टू योर स्ट्रैटेजी बिल्डर, या जो आप टूल प्रोवाइड करते हो, और उसमें वो सारे पॉइंट्स कॉन्फ़िगर हो जाए, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कब ऐसे लगाना है, कब उसको ट्रेल करना है, री एंट्री करना है कि नहीं, ऑल दोस पैरामीटर्स। तो उससे क्या हाँ, उससे क्या होगा कि फ्रॉम स्टॉक मॉक यू विल गेट डायरेक्ट न्यू कस्टमर्स। ओके, एंड यस यस। इंटीग्रेशन रहेगा तो ऑब्वियसली स्टॉक मॉक को भी फायदा होगा। पीपल यस विल यस नो कि ये एक्चुअली, चीज लाइव ट्राई कर सकते हैं। हाँ, StockMark is providing a link, like using the link you can directly configure the strategy in our software. But as of now हमने वो implement नहीं किया है। उसका रीजन क्या है कि हमारे थोड़े बहुत फीचर्स है ना StockMark से डिफर कर रहे हैं, कि कंबाइंड ओके स्ट्रेडल बेस हम लोग कंबाइंड स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड करते हैं, कि कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉस आपको ऐड करना है, तो दैट इज नॉट देयर ओवर StockMark। तो ओके कुछ कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि जो हमारे एंड पे या तो ज्यादा है या तो डिफर कर रहे हैं। So overall execution is similar to StockMark, but there are extra features. So because of that, we are not adding the copy button as of now. Because उसमें कई बार यूजर से गलती हो जाएगी और उनको पता नहीं चलेगा, तो that will be a bad thing. राइट So राइट that's why we राइट are reluctant to add that. ओके। अभी जैसे आप इतने सालों से आप कस्टमर्स के लिए स्ट्रेटजीज मतलब ऑटोमेट कर रहे हो, तो विच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपीरियंस विद एनी कस्टमर, कि यार जो होता है ना कि कोई कस्टमर नानी याद दिला देता है कि यार ये कैसा इंसान मिल गया मेरे को, ऐसा हुआ कभी? हाँ, ऐसा हुआ है, इनफैक्ट काफी बार हुआ है। और बताओ, वो टॉप चीज भी 3 अच्छा है, बताओ कुछ हमें। ना कुछ सिखा देता है। एक एक क्लाइंट मेरे पास ऐसे आए थे कि उनका स्ट्रेटेजी है ना, वो 1-2 लोड पे या 10-12 लोड पे ट्रेड टेस्ट नहीं हो सकता था। तो पेपर ट्रेड तो हम कर लेंगे, बट लाइव में उसको टेस्टिंग तो करना पड़ेगा। और लाइव टेस्टिंग में उनका कैपिटल है ना, वो मतलब 250 लोड निफ्टी कॉल के और 350 लोड निफ्टी पुट के, उस तरह के क्वांटिटी में ही उनको टेस्टिंग करना था। सो क्यों ऐसा हाई क्वांटिटी में क्यों टेस्टिंग करना था? उनका स्ट्रेटेजी वो पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ समझा रहे थे, वो मान ही नहीं रहा था। मैंने बोला आप उसको स्लाइस कर दो और कम क्वांटिटी में टेस्ट करो, बट ही वाज नॉट विलिंग टू डू दैट। उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऐसे ही टेस्ट करना है। अभी बेसिकली क्या होता है कि जो भी स्ट्रेटेजी हम ऑटोमेट करते हैं तो उसके स्टेजेस होते हैं, कि पहले हम पेपर ट्रेड पे टेस्ट करेंगे, फिर एक लोड से टेस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। उनके स्ट्रेटेजी एक तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, उसमें ऑर्डर स्प्लिटिंग वगैरह सब था, क्वांटिटी बहुत ही बड़ा था, और उनको टेस्टिंग में वो बिल्कुल मना कर रहे थे कि हाई क्वांटिटी में ही टेस्ट करो। सो वो प्रोजेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट रहा था। और उसमें
मैं आपको बताऊं ना कि वो टेस्टिंग हमने 2 दिन किया था, ठीक है। स्ट्रेटेजी का मैंने XYZ अमाउंट फॉर एग्जांपल 20,000 या 30,000 चार्ज किया था उस टाइम पे, और जो टेस्टिंग कर रहे थे ना, वो टेस्टिंग के फेज 2 दिन में क्लाइंट मेड अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीस। ओके, प्रॉफिट बनाया। हाँ मतलब अच्छा, मेरे को धक धक हो रहा था कि लॉस बनाया होगा, वो भी कुछ 10-15 लाख रुपए का। नहीं नहीं नहीं, सो वही चीज, मतलब उसमें एक्चुअली दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। कोई ऐसा क्लाइंट आ जाते, वो इनिशियली मुझे बताया नहीं कि टेस्टिंग कैसे ही होगा, अदरवाइज मैं भी उनसे पहले डिस्कस बट कर लेता ऐसा ये कौन सब। सा, मैं भी बहुत से स्ट्रेटजी मैंने पढ़ी है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी तो जो 250 लॉट पे ही टेस्ट हो सकती है? उसमें कम क्वांटिटी में कर सकते थे, बट वो क्लाइंट मना कर रहा था। इवन आई डोंट अंडरस्टैंड कि अभी तक मुझे रीजन पता नहीं चला है, बट उनको ऐसा करना था। ओके, वो क्या एक्सपायरी डे की स्ट्रेटजी थी? नहीं, डेली रेगुलर यूज करते थे, और शायद अभी भी यूज कर रहे हैं वो। बट ओके ओके, एटलीस्ट कैसा है क्लाइंट कि का नाम कोई आप डिस्क्लोज कर सकते हो कि वो भी कॉन्फिडेंशियल? नहीं नहीं, एक्चुअली ही वाज लाइक कोई बैंक के साथ काम कर रहे थे, तो ही इज नॉट। ओके, चलिए ये एक डिफिकल्ट एक्सपीरियंस हो गया, और बताइए डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस क्या क्या हुए? बाकी मेन चीजें तो नए ब्रोकर साइड करने में बहुत अभी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि सभी दूसरे जो भी ब्रोकर्स है सभी लाइक जीरोधा के जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, तो उनके एपीआईज वगैरह सब होता है, उसमें बहुत ही इश्यूज आते हैं। तो हर्ष सभी ब्रोकर के साथ कनेक्टेड होता है, और उन्होंने अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए है कि अभी मोस्टली सभी ब्रोकर्स लाइक हमारे सजेशंस पे भी हमें इम्प्रूवमेंट करके देते हैं, कि फिनवेशिया है, आईएफएल है, तो सबके साथ अच्छे रिलेशन है। और नए ब्रोकर ऐड करने में डिफरेंस क्या है ना, जो दूसरे प्लेटफॉर्म को जो ऑलरेडी सारे ब्रोकर ऐड किए हुए हैं ना, वो लोग ब्रोकर एपीआई पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोग ब्रोकर एपीआई पे रिलाई कर रहे हैं। सो ब्रोकर्स का अभी तक कैसा था कि ऑर्डर प्लेसमेंट का एपीआई ठीक था, बट डेटा में सभी ब्रोकर्स में कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं। सो वो सारे इम्प्रूव करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ दूसरे वेंडर्स का मतलब वो लोग ब्रोकर को इम्प्रूवमेंट नहीं करवा रहे थे, जस्ट एपीआई सब दे देते थे, और बाद में जब एंड यूजर यूज करता है, कुछ एरर्स आता है, तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। तो वो सारी चीजों में ये पिछला साल तो हमारा उसी में गया कि हमने जो भी ब्रोकर ऐड किए सभी ब्रोकर के साथ अच्छे रिलेशन है, और काफी इम्प्रूवमेंट्स ब्रोकर ने भी बहुत सपोर्ट किया है। सो इसमें जो भी लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, इसमें से आधे से ज्यादा लोग तो या तो एल्गो ट्रेडर है या बनना चाहते हैं एल्गो ट्रेडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एपीआई वाइज सबसे अच्छे 3 ब्रोकर कौन से हैं, कि अगर किसी को एपीआई यूज करना है तो कौन से 3 ब्रोकर सबसे अच्छे हैं, क्योंकि आप नंबर 12 को वन इज हैंडल कर रहे हो प्रोफेशनल लेवल पे? नंबर वन इज जेरोदा ओनली। जेरोदा को अभी एपीआई में कोई बीट नहीं कर सकता है। जेरोदा के उनके वेब प्लेटफॉर्म में कई बार इशू होता है, बट उस टाइम पे भी एपीआई स्टेबल रहा है, और इश्यूज बहुत ही कम हुए हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं आईएफएल, अच्छा है। फिर फिनवेशिया जो है वो अच्छा है। फिनवेशिया भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है एपीआई के लिए, क्योंकि उनका एपीआई भी बहुत अच्छा है और ब्रोकरेज भी फ्री है। बट ओके, और चौथे दूसरे नंबर सारे पे किसको ब्रोकर्स रखेंगे? में उसके बाद एंजल, मोतीलाल, ये सब आ सकते हैं। ओके, और सबसे जो एक सबसे कहते हैं सबसे टेरेबल, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ तो पैसे का सवाल है और सारे यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ही हैं, तो सबसे टेरेबल आपके उम्मीद में कौन सा है जिसका बार बार फंस जाता है और एपीआई दिक्कत देता है, दुखी कर देता है, ऐसा कौन सा है वो 12 में से? अपस्टॉक्स था। अपस्टॉक्स में एपीआई में बहुत इश्यूज आ रहे थे बीच में, तो हमने तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड मैं जेरोदा और अपस्टॉक्स दो कर रहा था। पहले जेरोदा से किया था, बाद में अपस्टॉक्स भी किया था। सो अपस्टॉक्स वाज इनिशियली वेरी गुड, और प्राइस में भी कॉम्पिटिटिव था कि उसके काफी यूजर्स, जेरोदा के काफी यूजर्स अपस्टॉक्स में शिफ्ट हो रहे थे। बट जैसे जैसे यूजर्स बढ़े, उनका एपीआई पूरा अनस्टेबल हो गया। और उस टाइम मतलब अभी तो शायद 1-1.5 साल हो गया होगा, बट अपस्टॉक्स ने फिर से एपीआई स्टार्ट नहीं किया है। मतलब ऑन रिक्वेस्ट ही दे रहे हैं कि आप अगर किसी को जानते हो तो वो कर देंगे, बट पब्लिकली नहीं दे रहे। तो अपस्टॉक्स एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, और उसमें भी मुझे ज्यादा बुरा इसलिए लगा क्योंकि उनका एपीआई बहुत अच्छा था, बिल्कुल जेरोदा जैसा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव, और प्राइसिंग भी अच्छा था, यूजर्स भी बहुत यूज कर रहे थे। उसके बाद बंद हुआ। तो ऐसा होता है क्या कि अगर बहुत ज्यादा यूजर्स ऑन बोर्ड कर लो तो एपीआई काम करना कम कर देती है या दिक्कत देती है, ऐसा होता है क्या? हाँ मतलब उनके सर्वर्स का कैपेसिटी होता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने मैनेज कर पाएंगे। तो आईएफएल में बीच में 3-4 वीक तक ऐसा इशू हो रहा था कि थर्सडे के दिन एक्सपायरी डे को उनका सर्वर डाउन हो जाता था,
बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑर्डर्स। तो उन्होंने भी काफी इम्प्रूवमेंट किए, अभी पूरा अलग अलग सर्वर्स में डिवाइड कर दिया है और अभी अच्छा चल रहा है, बट दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सर्वर डाउन हो जाता है मतलब क्या होता है, सर्वर को जाके मैनुअली रीस्टार्ट करना पड़ता है? या बेसिकली अपने एंड से वो लोग रिस्टार्ट करते होंगे, ये पूरा फिर से स्टार्ट करके पूरा तो उस उस टाइम दिन पे की इशू कहानी कब तो ओवर जाएगी? बेसिकली। सॉरी। मैं कह रहा हूँ उस दिन की कहानी तो खत्म हो जाती होगी जिस दिन डाउन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी आपका स्ट्रेटेजी चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम भी अगर सपोज ब्रोकर डाउन हो तो उतना टाइम में आपका स्टॉप लॉस आ गया होगा या टारगेट आ गया होगा, तो वो सब पूरा हम लोग कस्टमर्स को वही एडवाइस करते हैं कि वैसे केसेस में आप अलगो बंद करके मैन्युअली मैनेज कर लो, क्योंकि अगर वो वापस आ जाता है तो भी कुछ ना कुछ इश्यूज होने का चांस है। बेटर है कि आप मैन्युअली मैनेज कर लो, वो अच्छा रहता है। ओके ओके। अच्छा जेरोदा मुझे इज ये बाय बताइए, फॉर द हाँ। मोस्ट लाइक जेरोदा। हमें भी कोई भी कस्टमर जेरोदा बोलते तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ये अच्छा है, हमारा सपोर्ट का टाइम कम रहेगा। ये बताइए कि जैसे अ, अगर कोई एल्गो ट्रेडिंग में अपना खुद का बनाना चाहता है, कस्टम मेड हम्म खुद से बनाना चाहता है और थोड़ी बहुत हम्म प्रोग्रामिंग आती है, तो उसके हम्म। लिए क्या आपकी एडवाइस रहेगी, कैसे करना चाहिए एंड विच आर द डूज एंड डोंट्स यू शुड फॉलो? से अगर खुद से प्रोग्रामिंग करना है तो लाइक इफ यू आर कमिंग फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड तो आपके लिए अच्छा है। इट्स नॉट लाइक मैं मना कर रहा हूँ, बट इसका रीजन ये है कि ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप एक्सपीरियंस से ही सीखोगे ट्रेडिंग ऑटोमेशन में। तो पहली चीज ये है कि टाइम आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आप अपना पूरा दिन जॉब में बिजी होके सिर्फ रात को प्रोग्रामिंग करेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार आपने स्ट्रेटेजी ऑटोमेट कर लिया, बट ब्रोकर साइड से जो इश्यूज आएंगे वो तो आपको पता नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके सामने आएंगे। सो टाइम बहुत हो जाता है। तो पहली चीज है आपके पास टाइम होना चाहिए। लर्निंग के लिए तो अभी काफी सारे रिसोर्सेज कोर्सेज यूट्यूब में वीडियोस है, बहुत सारे, मतलब अभी तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है। सो मेन चीज वही है, टाइम और थोड़ा बहुत मतलब प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी है। और जैसे डूज एंड डोंट्स में सबसे बड़ा डोंट्स क्या होगा, लाइक ऐसा क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जो लोग करते हैं और उससे कैपिटल लॉस हो जाता है? मोस्टली पहला मिस्टेक तो मल्टीपल ऑर्डर्स का ही होता है। जो भी बंदा पहली बार बनाएगा, कि जिसको इतना प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, तो ज्यादातर लाइक 50-60% लोग ये गलती करते हैं। सो पहली चीज तो वही है कि आप उसी पे ध्यान दो। पेपर ट्रेड पे पहले बनाओ। पेपर ट्रेड में आप देखो कि ऑर्डर्स कितनी बार फायर हो रहे हैं, और एक बार वो सब ठीक लगे उसके बाद धीरे धीरे करके उसके लाइव ले सकते हो। ओके। और जो लोग आपके तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, कोई हम्म भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ भी हम्म ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी हम्म। सपोर्ट का बना रहे हैं, तो अगर अभी वो इनिशियल स्टेज में है तो विच आर द डूज एंड डोंट्स यू विल रिकमेंड? मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले सर्विस साइड पे फोकस करना चाहिए, सीधा प्रोडक्ट बनाने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सर्विस साइड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अगर अपने क्लाइंट्स के लिए भी ऑटोमेशन करोगे धीरे धीरे, जस्ट एक चीज का ध्यान रखना कि क्लाइंट का लाइक बुरा नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसी गलती ना करो कि जिससे क्लाइंट को कोई फाइनेंशियल लॉस हो। बाकी अगर स्ट्रेटेजी के लॉजिक में सपोज गलत सिग्नल जनरेट हो तो उसमें कोई भी क्लाइंट डांटने वाला नहीं है। सो पहला फोकस है सर्विस साइड पे होना चाहिए प्रोडक्ट बनाने से पहले, कि आपको उसमें एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। और उसके बाद अगर आपके पास पहले से सपोज इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्टली यू कैन वेंचर आउट इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। बट जो लोग इनिशियली लो कैपिटल से और खुद से काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सर्विस साइड बेटर रहता है कि आप क्लाइंट्स के लिए ऑटोमेट करो, और आपके पास अगर सफिशिएंट वर्क हो जाता है फिर धीरे धीरे यू वेंचर आउट इनटू प्रोडक्ट बेस्ड। तो आप इतने सालों से काम कर रहे हो ये एल्गो ऑटोमेशन का, तो कभी भी कैश फ्लो वाइज लगा कि आपको यार ये कैश फ्लो ड्राई अप हो गया, या घर से पैसे उठाने पड़े, या एक बिजनेस में मंदी आती है ना, वो ऐसा फेज आया कभी क्या? नहीं, उतना तो भगवान की कृपा है कि ऐसा कोई कभी ऐसा टाइम नहीं आया। कि लगातार ग्रोथ ही हो रही है बेसिकली? हाँ, अभी तो ग्रोथ ही हो रही है। ओके ओके। और ठीक। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ज्यादा हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं और अर्श कई बार बात करते हैं। अभी हम लोग कोई सपोज आइडिया सोचते ना कि हमें उस तरह का कुछ काम करना है, तो या तो सामने से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारे जो एफर्ट्स है वो अनपेड नहीं जाते हैं। सो तो अभी ये अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ लास्ट 6 मंथ्स में कब कब आई है? काफी बार हुआ एक्चुअली।
फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि ये ब्रोकर ऐड करना है, तो एक हफ्ते में कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है कि जो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये ब्रोकर ऐड करके दो। और नए ब्रोकर ऐड करने में हमारा पॉलिसी ऐसा है कि हम ब्रोकर कोई भी ऐड करके देंगे। अभी ब्रोकर का एपीआई रिलायबल है या नहीं, वो यूज करने के बाद पता चलेगा। मतलब आई डोंट प्योरली गो बेस्ड ऑन फीडबैक, क्योंकि फीडबैक के ऊपर जाते हैं ना, तो काफी ऐसे ब्रोकर्स है कि सपोज फिनवेशिया है, कोटक है, वो सब लोग मना करते हैं कि वो यूज मत करो। बट कोटक का एपीआई इट्स वेरी गुड नाउ, तो हम लोग यूज करते हैं और दिक्कत भी नहीं हो रही है। सो कोई भी नया ब्रोकर है, हमारा पॉलिसी ऐसा होता है कि आपको नया ब्रोकर ऐड करना है तो वी स्टार्ट द वर्क। अगर ब्रोकर एपीआई फेल होता है तो हम दूसरे ब्रोकर में, अगर उनको चाहे तो उसमें शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज फुल रिफंड दे देंगे। सो जब भी हमने सोचा है कि ये ब्रोकर ऐड करना है, तो किसी ने कहीं ना कहीं से वो रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप ये मुझे बना के दो। सो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें काफी होती है। हमने एक मल्टी अकाउंट ऑर्डर प्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट भी बनाया है कि आप सिंगल सॉफ्टवेयर में से मल्टीपल अकाउंट्स में ऑर्डर फायर कर सकते हो। तो उसमें भी वैसा ही हुआ था कि जब इनिशियली हमने सोचा कि ऐसा कुछ बनाते हैं, तो सामने से एक ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि मुझे ये बना के दो। सो मैंने बोला कि हाँ, हम लोग भी ऐसा एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम आपको बना के देंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी करते रहेंगे। तो क्लाइंट्स का भी अच्छा हो गया, हमारा भी अच्छा हो गया। Okay. I'll throw the question. I'll invite audience to ask questions now. If anybody has any related question, please ask for a mic. And once you get the mic, please start speaking. जब तक ऑडियंस लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज टेक अ माइक। ऋषि भाई, आगे का क्या प्लान है? अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल कुछ सोचा है? सो नेक्स्ट इज लाइक हम लोग कस्टम ऑटोमेशन में, उसमें हम टीम एक्सपांड कर रहे हैं कि जो भी अभी ट्रेडर्स सब अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, तो उसके लिए आई एम मेकिंग अ डेडिकेटेड टीम कि उनके डेवलपर्स और सपोर्ट टीम दोनों सेपरेट रहेंगे। और दूसरा एक डिवीजन होगा जो सिर्फ प्रोडक्ट बेस पे काम करेगा कि आई हैव लाइक इवन आई हैव सो मेनी आइडियाज, बट ड्यू टू lack of time we are not able to develop it with our current team. सो आगे का प्लान एज ऑफ नाउ ऐसा है कि एक्सपांड करने में, कस्टम ऑटोमेशन में इंक्रीज करना है और साथ में प्रोडक्ट वाइज भी चलेंगे। ओके, मयूर, यू हैव अ क्वेश्चन? आनंद भाई गुड इवनिंग, ऋषि भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे 2 सवाल है। पहला क्वेश्चन आनंद भाई से है। आनंद भाई, मैं एक स्ट्रैटेजी चला रहा हूँ इंट्राडे में। बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, उसको बैक टेस्ट किया हुआ है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो प्रॉफिट आया हुआ है 2-3 महीने में, इज इट अ बिगिनर्स लक? यूजुअली ऐसा होता है क्या? डेफिनेटली ये बिगनर्स लक है। तो इसको पेपर ट्रेड करिए कम से कम 6 महीने और, फिर फॉरवर्ड ट्रेस करिए छोटे कैपिटल से 3 महीने और, देन यू कैन बी श्योर। डेफिनेटली ये बिगनर्स लक है, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऋषि भाई से है कि ऋषि भाई, आपके एक्सपीरियंस से कोई भी स्ट्रैटेजी कितने साल बैक टेस्ट करनी चाहिए? टिपिकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी है तो कितने साल बैक टेस्ट करनी चाहिए और फिर उसके बाद डिप्लॉय किस तरह से करनी चाहिए? आई डोंट नो, इज दिस अ रेलेवेंट क्वेश्चन टू ऋषि भाई और प्रोबब्ली आनंद भाई कैन आंसर। एक्चुअली आई एम नॉट लाइक, मैं ट्राई करता हूँ। अभी कैसा होता है कि कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है कि इट इज वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक उसको आप 5-6 साल का डेटा या 10-12 साल का डेटा पे बैक टेस्ट कर पाओगे। बट रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू अ थ्रेड कि किसी ने आइडिया दिया था कि मार्केट डायनेमिक्स चेंज होता जा रहा है, जो 4 साल पहले का सिनेरियो था वो अभी नहीं हो रहा है। सो मेरे हिसाब से दोनों कंसिडर करके चलना चाहिए। रिसेंट डेटा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इज ऑल्सो लाइक, अभी सपोज आप ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बनाओगे और तो मार्केट विल फाइंड अदर वेज कि उसके अपोजिट काम करे। सो आपको रिसेंट डेटा पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू पास्ट डेटा। थैंक यू। मैं भी इसका आंसर आपको थोड़ा सा देता हूँ। जो रिचर्ड डेनिस थे ना, जिन्होंने टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम बनाया था, उनके जो बिजनेस पार्टनर थे,
दोनों लोग जो एक ही फंड मैनेज करते थे, वो MIT से उन्होंने PhD किया था मैथ्स में, और उन्होंने काफी बुक्स भी लिखी हैं बैक टेस्टिंग पे। उनका फ्यूचर मैगजीन में एक इंटरव्यू भी है, आई विल ट्राई टू ट्वीट अबाउट दैट इंटरव्यू। सी, आप कितने साल का या कितने पीरियड का डेटा लेते हो बैक टेस्टिंग के लिए, ये इस पे भी काफी डिपेंड करता है कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं, आपने कितनी कंडीशंस लगा रखी है। ओके, तो अगर आपने 3 कंडीशन लगाई है या 4 कंडीशन लगाई है या 10 कंडीशन लगाई है, उस पे ही आपका डिपेंड करता है कि आप किस हद तक कर्व फिटिंग कर रहे हो। तो जितनी ज्यादा कंडीशन होंगी, उसको आपको उतने ज्यादा पीरियड पे चेक करना होगा, सो दैट आप कहीं गलती से कर्व फिटिंग तो नहीं कर रहे हो। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये एक बहुत ही डिबेट का इशू है और पर्सनल बिलीफ है कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है कि नहीं होता। अगर आप ज्यादा समय तक देखोगे तो आंसर इज यस एंड नो। यस इन द सेंस कि अगर जब भी मार्केट में कोई एक नया रूल चेंज होता है, जैसे निफ्टी का लॉट उन्होंने 75 से घटा के 50 कर दिया, पहले एक मिनी निफ्टी भी था, फिर बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुए, निफ्टी का वीकली ऑप्शन, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं। पहले मुझे लगता है थर्सडे का जो मार्केट है वो आज से 5 साल पहले जो थर्सडे का मार्केट था वैसा सेम नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा बिलीफ लगता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर डेफिनेटली चेंज होता है जैसे जैसे रूल चेंज करते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट स्ट्रक्चर है जो आप 10 साल 15 साल का देखोगे, वो सिर्फ ग्रीड और फियर पे डिपेंडेंट है। जैसी आपने सेलिंग देखी मार्च 2020 में, और जो आपने जनवरी 2008 में सेलिंग देखी होगी, या जो .com की सेलिंग देखी होगी, या हर्षद मेहता स्कैम जब ब्लो आउट हुआ था तब सेलिंग देखी होगी, काफी आपको पैटर्न्स रिपीट भी होते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड यस एंड नो। तो आप ये अगर मानते हो कि मार्केट का पैटर्न रिपीट होता है, मार्केट रिमेन्स द सेम, जेसी लिवरमोर ने भी अपनी जो बायोग्राफी में ये बात बार बार बोली थी, 150 साल पहले ये चीज बोली थी कि मार्केट का जो पैटर्न है, मार्केट्स नेवर चेंज। तो मैं इस स्कूल को बिलीव करता हूं कि फंडामेंटल नेचर ऑफ द मार्केट नेवर चेंजेस, और इसलिए जब आप किसी स्ट्रैटेजी को लंबे पीरियड तक टेस्ट करते हो, 5 साल 6 साल 10 साल, जितना भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो यू कैन बी मोर श्योर अबाउट योर आउटकम। वीजा विज की बहुत लोग आते हैं मेरे पास जिन्होंने 6 महीने ही टेस्ट किया है, या स्टॉक मॉक पे 3 महीने टेस्ट किया है, या किसी ने 1 साल टेस्ट किया है, और वो उसकी रिलायबिलिटी कम रहेगी, ये मेरा मानना है। एक फॉलोअप क्वेश्चन बिल्कुल। अब मैंने जैसे पहले बताया कि मैं स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्टिंग हो रही है। अब मैंने करीब 600 650 ट्रेड्स लिए हैं, बट इट्स नॉट ऑन वन सिक्योरिटी, इट्स ऑन अ बकेट ऑफ 10 सिक्योरिटीज। Doesn't matter. As long as you are giving it long period of time. Okay. तो जिस भी पैरामीटर पर फिल्टर आउट कर रहे हो तो इट वर्क्स। सो 1000 ट्रेड 10 सिक्योरिटी पे, हाँ, तो 100 ट्रेड एक तरह की सिक्योरिटी, बट स्प्रेड ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड, टाइम मतलब 6 महीने या 1 साल या 2 साल या 5 साल के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इट इज रोबस्ट। ठीक है, थैंक यू आनंद भाई। ओके, एंड वन मोर थिंग ऑन द सेम, लाइक आप अगर कुछ भी बैक टेस्ट करोगे, तो बैक टेस्ट करने के बाद आप उसको पेपर ट्रेड करोगे, लाइव ट्रेड करोगे, सब में अलग अलग रिजल्ट आएगा। लाइक इफ फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग 50% ऑन बैक टेस्टेड डेटा, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम ऑन लाइव ट्रेडिंग। ठीक है। सो कोई भी आप बैक टेस्ट करते हो, उसको लाइव मार्केट में आप ट्रेड करके या पेपर ट्रेड करके, ऑटोमेट करके, अलग अलग तरीके से थोड़ा टाइम फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करो, उसके बाद आपको रियल कॉन्फिडेंस आएगा। काफी स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी में भी वैसा होता है कि अभी आप जब लाइव एग्जीक्यूशन करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट, कई बार उससे अच्छा भी मिल जाता है। इनफैक्ट मेरे क्लाइंट के साथ भी ऐसा हुआ था कि बैक टेस्ट से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला उनको। अक्सर होता है सर, इनफैक्ट ऐसा अक्सर होता है कि मैं एक्चुअली एज ए प्रिंसिपल मैं सेम सर्वर पे एक पेपर ट्रेड रन करता हूँ और एक अपना एक्चुअल रन करता हूँ, ताकि दोनों को एट द एंड ऑफ द कंपेयर कर सकूं कि कितना स्लिपेज हुआ या कितना चेंजेस आए। तो कभी भी डिजिट टू डिजिट सेम तो कभी भी नहीं होता है, और आधे टाइम बेटर होता है, आधे टाइम वर्स होता है, और कई बार काफी बेटर होता है। तो यू नो यू हैव टू टेक योर पेपर ट्रेड आल्सो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड बैक टेस्ट आल्सो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है कि यू हैव टू टेक द वर्स्ट केस सिनेरियो। जैसे अगर आपकी स्ट्रेटजी लेट से अगर 5% पर मंथ दे रही है, आपने कोई भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी ली है जो 5% पर मंथ, आप देखोगे वर्स्ट केस में 2% दे रही है कि नहीं, वर्स्ट केस में प्रॉफिटेबल है कि नहीं, then from there you can yeah. Thank you Anand bhai, thank you Rishi bhai। अपना डिसिप्लिन भाई
कौन सी दारू का गिलास है ये? ये इतनी beer जलन हो रही है ना, पूरे का शरीर में आग लग रही है मेरे, मतलब दारू पिए कितना टाइम हो गया मुझे। yeah. See, I have three questions for you, Rishi ji. टाल दिया आपने मेरी बात को। Listen, हाँ, पूछिए। नहीं, उसको गेस्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, इसलिए so ओ वाह, हाँ पूछिए। see, Rishi ji, just say for example, if I'm punching 10,000 orders per year, right, via Algomate, and I'm using the best API available, which is from Zerodha, right? okay. What do you say the success rate is? Either it may be the normal seller buy order or the stop loss orders. सर अल्गो का सक्सेस रेट अच्छा रहेगा, बट आपके स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट आप पूछ रहे हो तो No, उस पे strategy मैं का नहीं, comment नहीं कर strategy का सकता नहीं, हूँ। strategy का नहीं. नहीं नहीं, आप ये डिसिप्लिन में आप लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन? सक्सेस रेट एज इन हाउ मेनी ऑर्डर्स रीच द सर्वर? No, how many orders are getting executed? Say for example, if I think I am firing around 500 orders a day. Uh-huh. Okay. Okay. So across accounts, I have never seen any order failure, not even one. Okay. Good. So Because if one order fails, that means the entire algo fails, right? It has never happened. Yes. I'm not using Zerodha now. I'm using different broker. I'm using Kotak Securities, right? So for Kotak Securities, let me tell you, there is a separate Telegram group of enthusiasts who are using Kotak API, and they keep discussing their issues and all. If you go on Telegram and if you just search Kotak API something, you'll get it. Some 300 people are there. They keep discussing issues and all. So it depends on the broker, I guess. Rishi, you want to add something? कोटक में थोड़े बहुत इश्यूज है, बट अभी इतने सारे पहले जैसे इशू नहीं है. एज ऑफ नाउ इट इज स्टेबल. लाइक वी हैव 7 to 8 clients who are using Kotak broker, and it is very stable. They are using for stock market strategies only. So okay. थोड़ा बहुत क्या होता है कि कई बार जब ग्रुप में डिस्कशंस देखते हैं तो कुछ लोग बिगिनर्स होते हैं, कुछ लोग एक्सपर्ट हो गए, तो बिगिनर्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. कई बार इशू उनके एंड पे होता है, बट दे आर अनेबल टू सॉल्व इट एंड दे पोस्ट इन द ग्रुप. सो वैसा भी बहुत केसेस में होता है, बट ओवरऑल इट इज स्टेबल नाउ. एक्सपायरी डे पे कई बार इशू कुछ क्लाइंट्स ने फेस किया है कि ब्रोकर एंड से पोजीशन कट हो जाता है. तो आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ मार्जिन और समथिंग. मैं बहुत आइडिया नहीं है, बट वो एक एक्सपायरी डे का कोई कभार इशू होता है. बाकी ओवरऑल कोटक इज वेरी स्टेबल. Yeah, most of the times, the issue happens on, like Monday morning, right? It will work fine completely, for a month, and suddenly the issue happens, right? So that's why I was just trying to compare it with the Zerodha. Purpose, go with Zerodha only, because all the other brokers are either getting it developed from third party. Like मुझे लगता नहीं है कि Zerodha के अलावा कोई ब्रोकर का in-house टीम इस API को मैनेज कर रहा होगा. Everybody is going with third parties only. So stability का issue like over a month और month में 1-2 बार होने का चांस है. तो उस केस में Zerodha बेस्ट है. Zerodha is charging for the API. They charge 2,000 or candlestick data requires them 4,000 per month for the API. But against it, they are providing very good quality. But for regular algo trading, that 2,000 subscription is enough, right? Yeah. If candlestick data is not required, indicators are not required, then regular 2,000 per month API is good enough. Okay. Thanks. And I have second question for you, Rishiji. Say, for example, if SEBI decides to come up with a notice tomorrow, and they want to ban all APIs and the other algo platforms, then what will you do? Like, what is the backup plan there? See, if they ban the API, then we will not try to find any workaround, because we don't want to go against the system. So, but I don't think that is going to happen, because like all the countries are providing now, almost all the countries are providing algo trading. So I don't think they will ban it. They might just introduce some regulations for the brokers, some more compliance for them, but I don't think they will block the algo trading for retailers, because algo trading retailers के लिए अभी start हुआ है. HFT के मतलब जो for HNI it has been there. HNI, I'm not sure I'm using the correct word or not, but for big traders it is, for institutions it is already there. So I don't think they will ban it. There could be some more compliances. That's all. Okay. Thank you. And the last question, for you, right?
So Yeah. since we are talking about your product AlgoMate, so Yeah. Anand bhai, please let me know, if I can take an competitor name here. Is it okay? Anand bhai, you're on mute. I'm saying if you're praising the competitor, we are fine, but don't criticize anyone without Yeah, any please No, don't no, context. no, no. criticize. Nice. See, Please praise um, anyone. I like to praise. Yeah, praise anyone okay. you want. See, previously, I was using Algobaba, Stuxo, right? And I also used my AlgoMate, right? I mean, on the execution front of it, both works perfectly, right? The main difference what I'm seeing here is that, Rishit ji, आपका AlgoMate, so you have varieties of softwares, basic है, advanced है, right? Then if you want to go with the charts and like pyramiding, you have different applications, right? Whereas in stocks, so it's all in one package, right? And if you compare Yeah. the pricing, you're like 66% higher on an annual, if I take, right? So how do I mean, what do you think? I mean, how do you uh, convince the customers to use my argument going forward, in a more this one. I mean, there is no issue with the reliability or the execution part. It's one of the best, your application, right? But when it comes to the cost, I felt it's a bit on the higher side compared to the overall features. या आई अंडरस्टैंड सी एक आप हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, मुझे आइडिया नहीं था, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा आपका नाम. सो सी बेसिकली कैसा है ना कि अभी सभी लोग अलग अलग तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? अल्गोबाबा इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. और हमारा लाइक बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है कि वी आर नॉट गोइंग गिविंग एवरीथिंग इन अ सिंगल पैकेज. सो उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है कि कुछ लोगों को अगर सब चीजें एक सॉफ्टवेयर में है तो उनको यूज करने में थोड़ा इश्यू होता है. वो दे गेट कंफ्यूज कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, व्हाइल वी मेक एवरीथिंग सिंपल. आपको टाइम बेस्ड शेड्यूल करना है, आपके पास इतने ही पैरामीटर्स है, आप यूज करो. और दूसरा कस्टमर को कन्विंस करने का बात है तो लाइक मोस्टली हमारे जो कस्टमर्स आते हैं ना, वो किसी ना किसी के रेफरल से आ रहे हैं. कि सपोज आनंद भाई ने यूज किया, उनको अच्छा लगा तो ही विल रिकमेंड समबडी एल्स. और एज पर लाइक आवर कस्टमर्स सब बोल रहे कि हमारा सपोर्ट अच्छा है, कि लाइक वी आर एबल टू प्रोवाइड गुड सपोर्ट, हम टाइम पे इशू रिजोल्व कर देते हैं, तो जिसकी वजह से लोग पीपल आर विलिंग टू पे हायर फीस फॉर दैट. Okay, thank you, Rishit. Thanks, Anand. या बट सबका प्रोडक्ट अच्छा है, अल्गोबाबा के बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें भी कोई इशू नहीं है. आपको जो भी सूटेबल लगता है आप यूज कर सकते हो. और प्राइस पे तो मेरे को बोलना है ये चीज की डिसिप्लिन भाई, ये बहुत लोगों का ये कंसर्न रहता है प्राइस. तो अब जैसे आप देखो कि जीरोधा का एपीआई, जहां तक मुझे पता है, मैंने तो किसी और का यूज नहीं किया, वो शायद सबसे एक्सपेंसिव है. और बहुत लोग फ्री का एपीआई दे रहे हैं. इनफैक्ट आई वाज टेम्पटेड टू ट्राई आईएफएल का एपीआई. ओके, और जो वीक में मैं सोच रहा था मैं ट्राई करूंगा, बिकॉज आईएफएल आपको फ्री ब्रोकरेज भी देता है शायद 15,000 रुपए में एक महीने का. और फिर वही वीक में उनका एक्सपायरी डे के दिन ही उनका सर्वर डाउन हो गया, एपीआई डाउन हो गया. तो अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ऐसा फील्ड है ना जिसका रॉ मटेरियल, जो इसका कोयला है ना, जो स्टीम इंजन को आगे ले जाता है, वो है मनी. So money, मतलब it should not be concern for small things. ये अपना वैसा नहीं है कि we are running a business of a manufacturing unit और a किराना शॉप की जब 5 रुपए बचा लिया तो आगे काम आएगा. यहाँ पे things have to move well and things have to move fast so that you multiply your money fast. That's the core idea, right? अब अगर कोई भी चीज जैसे फ्री का एपीआई है, मैं वो एग्जांपल एपीआई का इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि इश्यूज सबको पता रहते हैं डोमेन में, तो वो अगर नहीं काम करेगा तो कितना लॉस हो जाएगा. या अगर हम किसी एल्गो स्ट्रेटेजी का, जैसे बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था एक प्लेटफॉर्म, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था जिसमें ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज देयर, तो अगर उसमें अक्सर ऐसा प्रॉब्लम होता है कि एक साइड का ऑर्डर लगा, एक साइड का ऑर्डर लगा ही नहीं, तो आपका स्ट्रैडल नेकेड हो गया. तो 1-2 दिन में जो आपने कॉस्ट बचाया वो सारा उधर चला जाता था. तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी. और वो जहां पे भी लगे, जैसा ऋषि ने बोला कि जिस भी प्रोडक्ट में आपको लगे, उसका प्राइस कुछ भी हो, कई बार बहुत कम प्राइस में भी बहुत अच्छी चीज मिलती है. तो आवर मेन फोकस एंड आई साइड शुड बी ऑन कि
how reliable the product is, how fast and efficient the product is, and if it is cheaper, well and good. If it is expensive, one should be willing to pay, provided it's like less than 1 or 2% of our total capital. Yeah. So Anandji, just a Smith. follow-up question. हाँ, आप पर्सनली कौन सा ब्रोकर यूज करते हो फॉर दिस वन? मैं मेरा प्राइम ब्रोकर तो फॉर एल्गो ट्रेडिंग आई यूज ओनली जीरोधा. Okay, because क्या है ना, see, every trader, I mean, in a journey of every trader, there comes two parts. One is the capital accumulation and the wealth creation, right? So now, say for traders who are in the capital accumulation phase, every 1,000, it matters, right? Say for example, if somebody wants नहीं, to it start always algo trading, sir मैं वही बता Yeah. रहा हूँ. I started my trading with 1 lakh rupees only, and honest to God, I'm not lying about it. Okay, okay, 1 lakh से मैं चालू किया, and अभी मेरा weekly brokerage is around 1 lakh rupees. yeah, So yeah, yeah. what I'm trying to tell you is कि वो टाइम पे भी एक 5 रुपए बहुत मैटर करता था, आज भी 5 रुपए बहुत मैटर करता है. If I tweet tomorrow, a lot of trolling will happen. The kind of slipper I wear, it is not more than 100-200 rupees. Okay, it matters to me in life. Okay, मैं अभी भी मेन्यू का वही प्राइस वाला साइट ही देखता हूँ. अगर पनीर लबाबदार पसंद है लेकिन 2 प्याजा सस्ता है तो अपन 2 प्याजा ही ऑर्डर करेंगे. बट जब अपन काम की बात करते हैं, यहाँ पे रिलायबिलिटी एंड एग्जीक्यूशन इज सो क्रिटिकल. इधर मैं प्राइस नहीं देखता हूँ. अगर Okay. मैं आईएफएल में शिफ्ट हो जाता या मैं अगर कोटक में शिफ्ट हो जाता तो अराउंड 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ आई वुड हैव सेव्ड ओनली ऑन ब्रोकरेज. कोई दूसरा साइंस नहीं चाहिए. सेम ऑर्डर, सेम एल्गो लॉजिक, सेम एवरीथिंग. बट सिर्फ रिलायबिलिटी इश्यूज के लिए अक्रॉस अकाउंट्स आई एम यूजिंग जीरोधा. मैं कोई जीरोधा का इधर अपना बहुत बड़ा फैन बॉय नहीं हूँ, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हाउ इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी फैक्टर इज इन आवर बिजनेस. भले आप 1 लाख का करो या 10 लाख, 1 लाख पे भी अगर कोई ऐसा एरर हो गया कि 20% उड़ गया, या अगर 10 लाख पे भी एक ऐसा एरर हो गया जिसमें कि 2% उड़ गया, सेम ही बात है ना. Since ये how बात many है. years you're using Zerodha for algo trading, Anandji? नहीं, एल्गो ट्रेडिंग तो मेरे को 1 साल से भी कम ही हुआ, 8-9 महीना ही हुआ. बट जीरोधा एज अ ब्रोकर आई एम यूजिंग फॉर मोर देन 8 years now as No, my not first a broker. broker, for algo trading. For algo only 8 months, 8 या 9 months. 8 या 9 months में एक भी बार आपके साथ कुछ इश्यू नहीं हुआ है क्या algo trading? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ. टच वुड. आई एम वेरी फॉर्चुनेट. Okay. मैं कई बार ऐसे देखता हूँ कि जीरोधा डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया. मेरा वो टाइम पे भी नहीं डाउन हुआ मेरा. Okay, because I'm using Kotak from last 1 year, right? And like I have faced like more than 10 to 12 times, and every time I will decide that if this happens next time I'll shift to Zerodha, right? Then for next 1 month नहीं तो there will आप not be ऐसा, any मैं issues. आपको बताता हूँ डिसिप्लिन भैया, मैं आपको बताता हूँ. whenever such an issue happens, you calculate the opportunity cost and you calculate the real loss which happened because of the downtime. Let's say Thursday ko your algo goes down, and see how much you would have made in paper. So that is the opportunity cost you lost. Then let's say one algo goes down, one leg or stop loss is not there or whatever, and then you calculate what is the real loss you had because of the malfunction of the algo, and then calculate that across 3 months, and you will see कि ये जो comparison price का आप कर रहे हो ना, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, it is peanuts in front of that. Stakes are so high that the entry fees for the casino doesn't matter. Stakes Okay. are so high. Got it, Anandji. Thank you. I'll do that. One more thing like I would like to add. अभी क्या होता है ना इस फील्ड में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना दैट इज सर्विस. लाइक आप लाइक क्वालिटी ऑफ सपोर्ट दैट यू आर गेटिंग. अभी मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, मैं सबके साथ पर्सनली टच पे होता हूँ और सब लोग मेरे से बात भी करते हैं. इवन छोटे छोटे इश्यू में उनके सुनता हूँ. सो लाइक फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट थे कि जिनको एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन में 2 सेकंड का डिले आ रहा था, उनको वो कैसे भी रिड्यूस करना था. तो मैं उनको समझ रहा था कि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है. इस घंटे पे हमने इस बात पे हमने 1 घंटा डिस्कशन किया कॉल पे, बट फिर भी एंड ऑफ लाइक कंक्लूजन ये हुआ कि मैंने उनको थोड़ा सा और भी ऑप्टिमाइज करके दिया. सो आपको किस तरह का सर्विस मिलता है ना, दैट इज मेन थिंग. आपका फोकस क्या है कि आपको क्वालिटी सर्विस चाहिए, आपको चीपर रेट पे सर्विस चाहिए, वो आपको डिसाइड करना था. कि आप इनिशियल स्टेज पे हो, आपको चीपर सर्विस चाहिए तो आप उस तरह का कोई सर्विस प्रोवाइडर ढूंढो. आपको अगर अच्छा सपोर्ट चाहिए, कई बार क्लाइंट से सुबह 8 बजे कॉल करते हैं, कई बार रात को 10 बजे कॉल करते हैं. वी पिक अप द कॉल्स और बात भी करते हैं. सो इट्स अपॉन लाइक आपको किस तरह का सर्विस चाहिए, उस तरह से आपको प्राइस डिसाइड करना होगा कि द अमाउंट लाइक क्वालिटी ऑफ सपोर्ट यू आर गेटिंग. इफ यू वांट गुड क्वालिटी यू शुड बी like willing to pay higher fees. If you are okay with support and everything, you can find a lower cost service provider. So that is your personal choice.
सो वो एक मेन चीज है, इस चीज में सपोर्ट, अल्गो ट्रेडिंग में सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड होता है. Got it, Rishi ji. Thank you very much. Okay, next question. Quickly, we'll wind up in another 15 minutes. गुड Please. इवनिंग सर. मैं अभी बीच में ही आया हूँ, तो मेरा एक क्वेरी था एल्गो से रिलेटेड, तो मैं वो आप बोलो तो रिपीट करते हैं पूरा से फिर से तिवारी जी. मैं अभी बीच में ही आया हूँ यहाँ पे, तो मेरा एक क्वेरी है एल्गो से रिलेटेड, तो मैं वो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? मुझे टॉपिक वगैरह का आइडिया नहीं है क्या है. बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछ लो. आप बस पूछ लो तो मेरा आप. एक क्वेरी है कि मेरा ना एक एंड ऑफ द डे डेटा के बेसिस पे कुछ स्टॉक्स आते हैं जो डिलीवर और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे होते हैं, तो वो डेली बेसिस पे ऐड हो जाते हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशन बाइंग या सेलिंग का होता है. तो उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट डे मूव आना होता है. वो स्टॉक्स इतने ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब कि जैसे सपोज डेली 10 आफ्टर एक्सपायरी डेली 10 स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं, तो विद इन वीक वहाँ पे कम से कम मतलब मेरे पास में 80-90 स्टॉक्स ऐड हो जाते हैं फ्रॉम F&O. तो अब वो 80-90 स्टॉक्स में मूव बहुत फास्ट आता है मॉर्निंग में ओपनिंग में ही, ठीक है. जैसे 5-10 स्टॉक हो गए, तो मुझे ना उनको एग्जीक्यूशन चाहिए कि जो मॉर्निंग में 9:18 पे या 9:17 पे जो टॉप 5 या टॉप 6 गेनर और टॉप 6 लूजर्स हैं, वो मेरे एट वन क्लिक एग्जीक्यूट हो जाए. मैंने एसएमसी में बात भी करी है, वो 1-1.5 महीना हो गया, वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स. अरे वो आपको ऋषि भाई करके देंगे. आप ऑफलाइन उनसे बात करो, उनका यही काम है 10 साल से. आप उनको पूरी रिक्वायरमेंट लिख के दे दो और पूरा बता दो. एंड आप बेसिकली कस्टम मेड सॉफ्टवेयर चाहते हो ना, कि आपकी जो रूल्स हैं उसके मुताबिक एक सॉफ्टवेयर बन जाए. हम लोग 1.5 घंटे से यही बातें कर रहे थे. आप उनको ऑफलाइन बता दो पूरा, ठीक है सर. और ही विल पिंग करो आप. डेफिनेटली ही विल क्रिएट इट फॉर यू. राइट ऋषि भाई? Sure. थैंक यू सो मच सर. Okay, next question. Hello. Yes. हाँ, so Rishi bhai, similar question है regarding the back testing, right? So long term का तो नहीं, छोटा time frame का ही सही, but 1 minute candles पे back test करना अच्छा है या फिर tick data पे? टिक डेटा इज बेटर, बिकॉज 1 मिनट में कई बार आपका एक्यूरेसी लाइक नहीं आता है बैक टेस्टिंग में, ड्यू टू मेनी रीजन. सो टिक डेटा आपके पास है, उससे बैक टेस्टिंग का तो वो बेस्ट है. टिक डेटा सबसे अच्छा है. टिक डेटा जितना टाइम का है उसमें आप टिक डेटा, अच्छा वही प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज कोई भी कंपनी में प्रोवाइड नहीं करती टिक डेटा. मैक्सिमम 1 मिनट का ही देखा है मैंने. सो उसका कोई उपाय है कि कहाँ? उसका उपाय सर मैं आपको बताता हूँ. जो भी चीज आपकी टिक डेटा पे जो आप ट्राई कर रहे हो, उसको पहले आप 1 मिनट पे ट्राई करके देख लो, अगर चल रही है कि नहीं चल रही है. ठीक है, टिक डेटा से आपको ज्यादा रिफाइंड रिजल्ट मिलेगा और आप उसको ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो. लेकिन जो क्रूड लेवल पे जो आपकी स्ट्रैटेजी है, इट शुड वर्क ऑन 1 मिनट ऑल्सो. देन ओनली यू शुड ट्राई टू रिफाइन इट. वहां जाके यू विल नॉट डिस्कवर समथिंग न्यू. प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू फाइंड अ बेटर एज. बट एक जो कहते हैं ना कि बैक ऑफ द एनवेलप, इट शुड मेक सेंस एंड इट शुड वर्क ऑन 1 मिनट डेटा. देन ओनली यू शुड गो एंड स्पेंड ऑन टिक डेटा. राइट. बट ये टिक डेटा मिले कहाँ से? अगर से फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट ट्रू हाँ, 2-3 वेंडर हैं जो आप उनको पैसा दोगे तो दे विल प्रोवाइड इट टू यू. इनफैक्ट मैं और ऋषि दोनों लोग बैक टेस्टिंग में बिल्कुल आपके जैसे ही है, और हमारा कोई एक्सपर्टीज नहीं है. हम लोग जो अभी 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, वी आर मोर टॉकिंग अबाउट कि बैक टेस्टिंग के बाद आप कन्विंस हो गए कि ये रूल्स वर्क करते हैं, और उसको ऑटोमेट करने का काम ऋषि भाई करते हैं. जी, जितना तो मुझे समझ में आया. तो बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये अपने आप में एक पीएचडी लेवल का सब्जेक्ट है. उसके क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं उसमें, जैसे आप अगर संदेश को जानते हैं, संदेश अग्रवाल है या लॉजिकल ट्रेडर है, या हमारे साथ अनीश बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो बैक टेस्टिंग में काफी अच्छा काम कर रहे हैं. उनसे आप पूछोगे तो प्रॉब्ली बेटर बताएंगे. और ऋषि भाई, आप कुछ बताना चाहते हो और इसमें कि डेटा के बारे में कि कहाँ से मिलेगा? आई गेस ग्लोबल डेटा फीड प्रोवाइड करता है टिक डेटा. हाँ, ग्लोबल डेटा फीड है और एक ट्रू डेटा भी है, राइट? यस. हाँ, इन दोनों के से आप कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू. ओके, सीए आशीष. हेलो आनंद भाई एंड ऋषि भाई. मेरा एक क्वेश्चन है ऋषि सर से कि जैसे अभी डिसिप्लिन भाई बता रहे थे कि दूसरे जो एल्गो प्रोवाइडर हैं, तो ये मैं ऋषि भाई से बिल्कुल ठीक मानता हूँ कि इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है. बट मेरा एक सजेशन है कि माई एल्गोमेट में अगर 2 ऑप्शन ब्रोकर ऐड करने के मिल जाएं तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि अभी एक ही ब्रोकर उसमें सपोर्ट कर रहा है.
जैसे मैं फैमिली अकाउंट यूज करता हूँ फॉर टैक्स सेविंग पर्पस, तो ये ऑप्शन अगर मिल जाएगा तो बेटर रहेगा। ब्रोकर्स ऑफ मल्टीपल सपोर्ट करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि आपका एग्जैक्ट क्वेरी क्या है। बट ऐसा हो तो आप मुझे एक बार यू कैन कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली, सो वी कैन डिस्कस। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे जैसे आप माई एल्गोमेट चला रहे हैं तो उसमें एक ही जगह 2 ब्रोकर में ऑर्डर फायर हो जाएं। मतलब आप मल्टी अकाउंट एग्जीक्यूशन का बात कर रहे हैं? सॉरी, हाँ वही मल्टी अकाउंट एग्जीक्यूशन। ओके ओके, या इट इज ऑन द वे, आएगा। जैसे हमको 2 ब्रोकर में डालने हैं तो 2 जगह माई एल्गोमेट ओपन करना पड़ेगा, तो वो एक ही माई एल्गोमेट हो जाए तो उसमें काफी बेटर रहता है। Yes, yes, it is on the pipeline. Like it is on to do list. So बहुत जल्द हम ट्राई करेंगे मल्टी अकाउंट एग्जीक्यूशन लाने की। थैंक यू सर। Next question, please. Last question, probably. हेमकेश, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, आई थिंक हेमकेश चले गए। ऋषि भाई, थैंक यू वेरी मच। एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स यू हैव? थैंक यू सो मच आनंद भाई। और बस ऐसे ही आप नए नए प्लेटफॉर्म्स लाते रहिए जिससे हमारा एग्जीक्यूशन आसान होता रहे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। आई विल क्लोज इट। थैंक यू सो मच आनंद भाई, थैंक यू सो मच।